right? My voice is audible now? Okay. So what do you mean by synchronization? So its simple definition is the process of, first of all, we'll discuss what do you mean by parallel operation. Parallel operation of synchronous generator. Parallel operation means two generators connected in parallel. If we connect two generators, or you can say if we connect two synchronous generator in parallel, then we call it as it's a parallel operation. I can show you the figure. Just you can see that two generators are connected in parallel. E1 is one synchronous generator and E2 is one synchronous generator. Both the generators are connected in parallel. Okay? So why parallel operation is necessary? This is very important. Why we connect two generators in parallel? Just try to understand the concept. Concept is very important. In all over India in power system, the entire system is divided into 5 grids. We call it as a grid, and grid means all generators in each grid, all generators are connected in parallel. Suppose we belong to central grid, right? Maharashtra belong to central grid. So in Maharashtra or some part of MP and part of Chhattisgarh, few 3 or 4 states, all states belong to central grid. The central grid means all these around say 100 of generators or 200 synchronous generator are connected in parallel. Sir, all generators are connected in parallel. So are you getting my point? When suppose in Maharashtra central grid 100 generators are there, they are connected. So what do you mean by parallel? Why we go for parallel operation? So just take an example. Just आप logically सोचिए कि अगर in Nagpur Wardha region, suppose we have a generator in Koradi power station, Khabarkheda power station, we have 5 generators. Okay. By chance, all the generators in Koradi power station are switched off, or they are loose synchronism or turned off. So how do Nagpur get power? How do Nagpur people or Wardha people get power? Because if Wardha is dependent on Nagpur or Chandrapur, so that if that power station is shut down, then it will be a complete shutdown, no power for many hours. Okay? Suppose you have only one generator in college. If generator is shut down, means there will be no power. If you have 2 generators and connected in parallel, in case of emergency, one generator is not operating, other generator will feed a power. That is why the system in India is all the generators are connected in parallel. Show that is called as, we call it as all the generators are connected in parallel to infinite bus. Say why we call it as an infinite bus? We say 400 generators, 300 generators in one grid are connected in parallel, or in case of any emergency, if one generator is shut down, thus power will continue to flow. There will be no disruption in power. अगर आप वर्धा का पावर स्टेशन का अगर जनरेटर खराब हो गया तो वर्धा को पावर हमेशा मिलेगा. टोटल सिस्टम में से एक जनरेटर ऑफ होगा, मे बी एनी प्लेस. तो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए, वी ऑलवेज कनेक्ट all the generators in parallel. Okay. Getting my point? Why we go for parallel operation? Parallel operation means suppose सब लोग अपना पानी कुएं में डाल दिए, and from कुआं well
Anybody having any queries, doubt? They can ask. Hello. तो किसी को अगर यूज करना है पावर तो हमें कुएं से बाल्टी डाल के पानी निकाल ले रहे, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। जनरेटर ये इंटायर सिस्टम इज लाइक अ वन वेल। अगर किसी को भी anybody need water, they can put their bucket and draw the water, और वैसे anybody need a power, they can draw the electrical power। तो इसके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका एक एक्सपेरिमेंट है। इफ यू कम टू कॉलेज देन आई विल टेक दिस एक्सपेरिमेंट। ऑनलाइन आपको एक एक्सपेरिमेंट लूंगा, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू जनरेटर्स। जनरेटर्स को हम डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते। देयर आर सम कंडीशंस, necessary and sufficient conditions which are to be fulfilled before connecting two generators in parallel। ठीक है, it's just like a agreement कि दो जनरेटर को कनेक्ट करने के पहले आपको देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास अभी कॉलेज में दो जनरेटर रखिए, we have 2 3-phase synchronous generator in college lab में ऑलरेडी है। तो ये दोनों जनरेटर को हम पैरेलल में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस मैच करनी पड़ेगी। तो यू कैन सी फर्स्ट कंडीशन क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग मशीन इज सेम एज बस बार वोल्टेज, और यू कैन से ये आपके BL थेरेजा के बुक में देखो, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग वोल्ट अल्टरनेटर मस्ट बी सेम एज बस बार वोल्टेज। ठीक है, तो जितने भी जनरेटर कनेक्टेड है, ऑल जनरेटर्स इन पैरेलल, उनको उसको हम वी कॉल इट एज अ बस बार, एक बस बोलते हैं। दिस वर्ड विल कम कंटिन्यूअसली इन फ्यूचर कि व्हाट इज बस, व्हाट इज बस बार, व्हाट इज इनफाइनाइट बस। हम पावर सिस्टम में इनफाइनाइट बस बोलते हैं। इनफाइनाइट बस मींस एक बस है जिसमें सारे जनरेटर्स, ऑल द जनरेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वी कॉल इट एज अ इनफाइनाइट बस, राइट। व्हाट हैपेंस, व्हाट रियली हैपेंस कि व्हेन ऑल जनरेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट बस। तो पहली कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन है, वी हैव ऑलरेडी सीन। What is first condition? What is first condition? The terminal voltage of incoming alternator must be same as bus bar voltage। कि सारे जनरेटर के वोल्टेज सेम रहेगा। अगर वोल्टेज डिफरेंस रहेगा तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो जाएगा और सिंक्रोनाइज होगा नहीं। यानी इट्स जस्ट लाइक, जैसे एक एग्जांपल है, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो पूरी कंडीशन मैच करते हैं ना। जैसे इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन BIT, तो आप आके चेक करते हो कि BIT की कंडीशन मेरे कंडीशन से मैच होती है। वैसे व्हेन यू कनेक्ट टू जनरेटर्स इन पैरेलल, एट दैट टाइम यू हैव टू मैच द फर्स्ट कंडीशन, द टर्मिनल वोल्टेज रेटिंग्स ऑफ बोथ द जनरेटर मस्ट बी सेम। 230 वोल्ट अगर और 440 वोल्ट अगर इनकमिंग जनरेटर 1 का है, 440 वोल्ट जनरेटर 2 का भी होना चाहिए, तभी हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन देखो, चेक करो, द स्पीड ऑफ इनकमिंग मशीन, द स्पीड ऑफ इनकमिंग मशीन मस्ट बी सच दैट इट्स फ्रीक्वेंसी Pn by 120 इक्वल्स बस बार। तो ये कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी सबका सेम होना चाहिए। Frequency should be always be same for generator 1, generator 2, generator 3, all infinite generators connected, all the generators connected in parallel, their frequency must be same। Change in frequency is not at all allowed। Frequency का change को हम allow नहीं करते। N is equal to 120 F by P, F is equal to Pn by 120। स्पीड चेंज हो सकती है, ठीक
ठीक है. The question is written, the speed of incoming machine must be such that its frequency equals to bus bar frequency. तो speed change हो सकती है. अगर 2-pole machine है तो it can run at 3000 rpm. If 4-pole machine है तो it can run at 1500 rpm. But frequency is 50 hertz. No. The first condition is voltage of both the alternators are same. Second condition is speed of both the alternators or one alternator and infinite machine, infinite grid, infinite bus bar की frequencies. Third condition, come to third condition. The phase of alternator voltage, right? The phase of alternator voltage must be identical with the phase of bus bar voltage. ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. It means that switch must be closed at or very near the instant the two voltages have correct phase relationship. तो third point को just try to understand what is third point. First point voltage same, second point frequency same. Third point को समझने की कोशिश करो कि हम अल्टरनेटर को आप क्या कर रहे हो, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो. अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करना मींस एक अल्टरनेटर को दूसरे अल्टरनेटर से, ये देखो एक सिंगल फेज अल्टरनेटर है, एक अल्टरनेटर को दूसरे अल्टरनेटर से पैरेलल में हम कनेक्ट कर रहे हैं. व्हेन यू आर कनेक्टिंग वन अल्टरनेटर विद अनदर अल्टरनेटर, वन कंडीशन इज वोल्टेज शुड मैच. अगर वोल्टेज मैच नहीं करेगा तो शॉर्ट सर्किट करंट होगा. सेकेंड, फ्रीक्वेंसी भी मैच होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी मैच हो गई. अब बात आती है फेज सीक्वेंस मैच होना चाहिए. तो देखो 37.75 में दिया है कि फेज सीक्वेंस देखो ब्लू आगे आगे चल रहा है और रेड पीछे पीछे चल रहा है, तो ये अलाउ नहीं है. ठीक है ना. E1 और E2 का जो फेज सीक्वेंस है यानी टाइमिंग है वो मैच होना चाहिए. फेज सीक्वेंस मींस टाइमिंग. और यू कैन से आर फेज से कनेक्ट करो, वाई फेज से कनेक्ट करो, बी फेज से कनेक्ट करो, और दोनों एक साथ चलना चाहिए. ठीक है ना. टाइमिंग बिल्कुल फेज सीक्वेंस मैच करना मतलब से फेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए. अगर फेज डिफरेंस आएगा तो शॉर्ट सर्किट करंट. तो ये थर्ड पार्ट इज टीडियस. थर्ड पार्ट को मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट. पहले दो चीज बहुत जल्दी मैच हो जाते हैं. या फ्रीक्वेंसी दोनों जनरेटर का मेजर कर लो. फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंस आ रही है तो आप स्पीड चेंज कर दो. जैसे अगर हम सिंक्रोनाइजेशन सेट अगर अपने कॉलेज का देखेंगे तो हमारे पास दो सिंक्रोनस जनरेटर है और बोथ द सिंक्रोनस जनरेटर इज रन बाय प्राइम मूवर, दैट इज डीसी मोटर. तो दो डीसी मोटर है, दो सिंक्रोनस जनरेटर है. उसको हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में या 4 पोल है तो हम 1500 आरपीएम में चलाते हैं तो 50 हर्ट्ज मिलता है. तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी जो आती है हम उसको स्पीड चेंज करके मैच करते हैं. लास्ट पार्ट ही बस बच जाता है कि आपको फेज सीक्वेंस कैसे मैच करना. फेज सीक्वेंस कैसे मैच करना मींस आर फेज और वाई फेज. आर वाई बी फेज है और इसका आर वाई बी फेज और उसका आर वाई बी फेज मैच होगा तभी हम स्विच को ऑन कर देंगे. ये देखो आपके पास ये जनरेटर का सर्किट दिख रहा है. ये स्विच है आपके पास. ये एक स्विच है और एक स्विच है, दो स्विच है आपके पास. यू कैन से दिस इज वन स्विच. ये एक स्विच है, ये एक स्विच है. तो पैरेलल में ऑपरेट करने से पहले आपको एक 2-वे स्विच को रखना पड़ेगा. डबल पोल 1-वे स्विच है, ये 2 पोल्स है. इसको ऑन करना है. जैसे आपको ऑन करना है तो वो टाइम देखना पड़ेगा. पहले वोल्टेज मैच, फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, ठीक है. वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर मैच. थर्ड स्टेप इज यू हैव टू चेक द टाइमिंग्स. यू हैव टू चेक द टाइमिंग की आर फेज जो फेज सीक्वेंस जो ऑलरेडी जनरेटर पे कनेक्टेड है बस बार से और हमारा जनरेटर का जो फेज सीक्वेंस है वो सेम.
अगर आर फेस और आर फेस मैच हो जा रहा है साइनोसॉइडियली तो आप तुरंत ऑन कर दें। तो ये दिस इज वेरी टीडियस पार्ट। तो इसके लिए इस सर्किट में आप देख रहे हो लैंप कनेक्ट किए, आपको लैंप दिख रहा है क्या? देखो लैंप क्रॉस में कनेक्ट किए, अगर सेम जगह लैंप कनेक्ट किए रहते तो अगर दोनों लैंप डार्क है तो फेज सीक्वेंस मैच हो गया। अभी क्रॉस कनेक्ट किए तो दोनों लैंप ब्राइट होना चाहिए। अगर दोनों लैंप L1 एंड L2 ब्राइट होना चाहिए तो हमारा फेज सीक्वेंस मैच हो गया। फेज सीक्वेंस मैच हो गया तो तुरंत आप की ऑन कर दो। तो थोड़ा सा ये दिस इज सिंक्रोनाइजेशन इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। आपको मैं एक्सपेरिमेंट बुक्स नेक्स्ट क्लास में दिखाने की कोशिश करूंगा। अनलेस एंड अनटिल यू सी द एक्सपेरिमेंट नहीं देखोगे तो, और नेक्स्ट वीक में दिखाऊंगा क्योंकि वो लैब असिस्टेंट भी नहीं है। यू नो वेरी वेल कि JEE की एग्जाम हो रही है इंटरनल कॉलेज में, तो उसमें लैब असिस्टेंट्स आर बिजी व्हेन दे आर फ्री। जैसे वो फ्री होते हैं मैं आपको डेमो दूंगा कि 2 जनरेटर को पैरेलल में आप कैसे कनेक्ट करें। अगर एक बार आपने उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो वो एग्जैक्टली कैसे होता है उससे हम कैजुअल वे में नहीं कर सकते। दैट इज अ वेरी लाइव एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट यू हैव टू मैच फ्रीक्वेंसी, स्पीड, voltage, then second you have to match frequency, then third you have to step you have to match frequency. Once frequency is matched, switch is switch को आप directly close कर सकते हो। ठीक है, anybody having any confusion doubt है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, what exactly happening in synchronous machine, right? Okay. Thumb rule or on simple way you can say connecting 2 generators in parallel is nothing but synchronization. Connecting 2 generators in parallel is called as synchronization. Anybody having any doubt they can ask? किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। When you do this experiment तो आपको लाइव एक्सपीरियंस जब मिलेगा तब समझ में आएगा कि सिंक्रोनाइजेशन व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द नीड। तो इसके कुछ मेथड्स है सिंक्रोनाइज करने। जैसे ये 2 क्रॉस लैंप लगाए हैं तो एक न्यूट्रल है और एक फेस है। तो फेस और को न्यूट्रल से ये फेस को न्यूट्रल से दूसरे जनरेटर से कनेक्ट। देखो लैंप को कैसे कनेक्ट किए, L1 का एक एंड दूसरे जनरेटर से कनेक्ट है और L1 का एक एंड पहले जनरेटर से कनेक्ट है, और क्रॉस भी कनेक्ट किया है। सपोज एक फेस है और एक न्यूट्रल है तो फेस को न्यूट्रल से कनेक्ट किया और ये फेस को कनेक्ट किया। तो ऐसा वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि तो इसमें अगर ब्राइट हो रहा तो फेस मैच होगा। अगर R को R से कनेक्ट कर देंगे हम, मैं आपको एक दिखाता हूं। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ 3 फेज जनरेटर का मेन डायग्राम ये ऐसा है। वन जनरेटर इज RYP एंड सेकेंड जनरेटर इज R'-Y'-P', R'-Y'-P'। तो हम लोग चाहते क्या है कि R फेस से ही कनेक्ट हो, Y फेस से ही कनेक्ट हो, B फेस से ही कनेक्ट हो, और वो एक साथ पैरेलल में चले। R फेस और R' फेस, one alternator phase sequence is R and other generator phase sequence is terminal name is R'। तो R और R' के बीच में फेस डिफरेंस ना हो, वो एग्जैक्टली मैच करे। तो उसको मैच करने के लिए आपने देखो R और R में ही लैंप कनेक्ट कर दिया। एक लैंप R में है और एक एंड उसका R' में। इसको केयरफुली देखो। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों सीक्वेंस मैच हो गए, R और R' सेम फेज सीक्वेंस हो गए, और उसके अक्रॉस आपने जनरेटर लैंप कनेक्ट किया, तो लैंप का वोल्टेज कितना होगा? लैंप वोल्टेज विल बी 0 और डार्क। लैंप विल बी अंडर डार्क कंडीशन। व्हाई अंडर डार्क कंडीशन? क्योंकि देखो
इसका 230 वोल्ट, इसका 230 वोल्ट, सेम फेज सीक्वेंस में तो डिफरेंस नहीं आ रहा, डिफरेंस नहीं आ रहा तो डार्क हो गया। यानी आर माइनस आर डैश अगर जीरो है तो लैम्प क्या हो गया, L1 डार्क हो गया। अब ये देखो, इसको L2 को देखो, L2 को Y फेस में ऊपर कनेक्ट किया है और नीचे B फेस में कनेक्ट किया, यानी क्रॉस कनेक्ट किया। तो यानी समझ लो कि क्रॉस कनेक्ट किया तो Y और Y डैश मिल जाएगा तो वोल्टेज आ जाएगा। Y को B डैश से कनेक्ट किया तो ये फेज सीक्वेंस मैच होगा, तब वोल्टेज आएगा। तो L2 और L3 ब्राइट होंगे, L2 एंड L3 ब्राइट होंगे। ब्राइट क्यों होंगे? क्योंकि लैंप को L1 को R और R डैश में कनेक्ट किया तो फेस मैच हो जाएगा, तो वो डिफरेंस वोल्टेज जीरो हो जाएगा। लेकिन L2 एंड L3 को क्रॉस कनेक्ट, Y को ये इधर भी देख सकते हैं, Y को B डैश से कनेक्ट किया है, Y को Y से करना था और B को Y डैश से कनेक्ट किया। तो जब फेज सीक्वेंस एग्जैक्टली मैच होंगे तो L2 एंड L3 ब्राइट होंगे और L1 डार्क होगा। तो देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड एज 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैंप मेथड। 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैंप मेथड। ऐसा आपको लैंप दिखेंगे यहाँ पे, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा लैब में लाइव डेमो, तो आपको लैंप दिखेंगे, 2 ब्राइट हो रहे, 1 डार्क हो रहा, 2 ब्राइट हो रहे, 1 डार्क हो रहा, 2 ब्राइट हो रहे, 1 डार्क हो रहा। जिस मोमेंट में आपको दिखा, व्हेन यू सॉ 2 ब्राइट एंड 1 डार्क, उस मोमेंट में मोमेंटरली आपको क्या करना है कि जो स्विच है, देखो ये स्विच की डंडी है 1 2 3, स्विच को इमीडिएटली उसी मोमेंट में आपको बंद ऑन कर देना। तो दोनों जनरेटर पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार पैरेलल में कनेक्ट हो गए मींस हो गए, लॉक हो गए फिर, ठीक है ना। तो यही आप यू कैन से सिंक्रोनाइजेशन मींस यू आर लॉकिंग वन जनरेटर विथ अदर जनरेटर और यू आर ऑपरेटिंग वन जनरेटर इन पैरेलल विथ अदर जनरेटर और ऑपरेटिंग वन जनरेटर इन पैरेलल विथ इनफाइनाइट बस बार, और इनफाइनाइट बस बार में आपके हंड्रेड्स ऑफ जनरेटर्स आर कनेक्टेड। ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है कि ऑल जनरेटर्स इन पावर सिस्टम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। In fact, in grid, northern grid, southern grids, western grid, eastern grid, central grid, ऐसे पूरी इंडिया को 5 ग्रिड में बांटा गया है। तो एवरी ग्रिड हैज, जैसे हम सेंट्रल ग्रिड में आते हैं तो सेंट्रल ग्रिड में हमारे 100-200 जनरेटर पूरे महाराष्ट्र के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, 3-4-5 स्टेट के, ऑल आर कनेक्टेड। ठीक है। ग्रिड से दूसरे ग्रिड में भी पावर ट्रांसफर होता है, पावर ट्रीटी होती है। जैसे आप दूसरे स्टेट को पावर दे रहे हो, दूसरे ग्रिड को पावर दे रहे हो, तो उनको वैसा उनका मनी बैलेंसिंग होता है, उनको उतना पे करना पड़ता है। ऑल दिस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो होते हैं वो स्टेट के अंडर में होते हैं। तो ग्रिड से ग्रिड अगर आप पावर कभी कभी खरीदना पड़ता है, अभी तो महाराष्ट्र में तो क्वाइट सफिशिएंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम तो खरीदते नहीं है, लेकिन मुंबई वगैरह में खरीदना पड़ता है अंडर एक्सट्रीम पीक लोड कंडीशन, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटिंग एंड इट इज यूटिलाइज्ड। तो समर वगैरह में जब पीक लोड कंडीशन में ऑल एसीज आर रनिंग पीक समर में, तो जब डिमांड बहुत हाई राइज हो जाती है तो लेट नाइट में वगैरह आपको इवनिंग टाइम में ग्रिड से दूसरे ग्रिड से पावर खरीदना पड़ता है। तो दिस इज अ वेरी बिग कंसेप्ट। आप इसको धीरे धीरे BL थेरेजा की बुक से पढ़ो, सिंक्रोनाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपके पास कोई डाउट है, क्यूरीज है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक सिंक्रोनोस्कोप, एक मशीन आता है विच इज कॉल्ड एज सिंक्रोनोस्कोप, सिंक्रोनोस्कोप बोलते हैं। तो उससे भी आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। वो मशीन में आपको दिखाऊंगा कॉल क्लास में कि अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन करना है, ये फेज सीक्वेंस मैच करना है, तो उसको हम सिंक्रोनोस्कोप से भी कर सकते हैं। बाकी हमारे पास लैम्प मेथड एक है और दूसरा सिंक्रोनोस्कोप। ये डायग्राम देखो, ये आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ,
एक जनरेटर ऑलरेडी ये मेन स्विच अगर आपने जैसे ऑन की तो वैसे तीनों जनरेटर इनफाइनाइट बस से होता है। तो उसे करने के लिए टू कनेक्ट अ सिंक्रोनस अल्टरनेटर विथ इनफाइनाइट बस बार में कनेक्ट करने के लिए व्हाट यू नीड अ लैंप्स। तो ये देखो L2, इसमें L2 बीच के फेस में YY फेस में ही है और L1 भी RR फेस में ही है, L3 भी BB फेस में ही है, BB डैश फेस में है। तो दिस मेथड इज डार्क मेथड। जब ऑल द 3 लैम्प्स आर डार्क देन फेस सीक्वेंस मैच हो गया, आपको स्विच चला देना। So there are methods of synchronization. That is why I want to show this slide. Methods of synchronization. First method is dark lamp method. Second method is bright lamp method, or 2 bright and 1 dark lamp method भी बोल सकते हैं. And third is synchronoscope method. And the condition should satisfy is voltage, frequency, phase sequence. Voltage तो आप वोल्टमीटर से मेजर कर लोगे, फ्रीक्वेंसी भी आप मेजर कर लोगे. फेज सीक्वेंस मेजर करने के लिए आपको टाइम कैच करना पड़ता है। फेज सीक्वेंस मेजर करने के लिए आपको टाइम कैच करना, एक पर्टिकुलर टाइम में ही फेज सीक्वेंस आता है एग्जैक्टली, और वहीं उसी समय मैच होता है। हर समय फेज सीक्वेंस मैच नहीं होता है। ये एक एसी साइकिल जा रहा है, इसका एक एसी साइकिल जा रहा है, वो जब जीरो क्रॉसिंग दोनों एक साथ करेंगे उसी समय आपको स्विच ऑन करना, ठीक है। तो फेज सीक्वेंस मैच करने के लिए आपको टाइमिंग मैच करना, ठीक है। तो इज इट क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट है तो देख आप पूछ सकते हो। डार्क लैम्प मेथड में आप समझ रहे हो ना, R डैश R के बीच में लैंप लगा दिए, B डैश के बीच में लैंप लगा दिए, Y डैश के बीच में लैंप लगा दिए। तो फेज सीक्वेंस अगर मैच हो गया मींस ये अल्टरनेटर और ये अल्टरनेटर का वोल्टेज सेम है, अगर उसके बीच में अगर आप लैंप कनेक्ट कर रहे हो, व्हेन द बोथ द अल्टरनेटर वोल्टेज एंड फेज सीक्वेंस इज सेम एंड यू आर कनेक्टिंग अ लैंप इन बिटवीन B एंड B डैश, तो लैंप अगर मैच हो रहा है तो लैंप डार्क रहेगा। तो जिस टाइम में तीनों लैंप L1, L2, L3 आर डार्क, द स्विच इज टर्न्ड ऑन, वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अगर सिंक्रोनाइज गलत होगा तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, रोटर ऑसिलेट होगा, ठीक है। सेकेंड मेथड इज, ये देखो फेज सीक्वेंस ये अपोजिट फेज सीक्वेंस में है, तो इसमें आपको हाई करंट फ्लो होगा, फेज सीक्वेंस मैच होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड मेथड देखो ब्राइट लैम्प मेथड। ब्राइट लैम्प मेथड मींस लैम्प्स डार्क लैम्प मेथड में डार्क रहते हैं और ये ब्राइट लैम्प मेथड में लैम्प्स क्या होते हैं, ब्राइट रहते हैं। ब्राइट का मतलब है कि आपने L1 कहाँ कनेक्ट किया, R एंड Y डैश में, L2 कहाँ कनेक्ट किया, Y एंड B डैश में, और L3 कहाँ कनेक्ट किया आपने, B एंड Y डैश में। ये ब्राइट लैम्प मेथड मींस तीनों लैम्प ब्राइट है, तीनों को क्रॉस कनेक्ट किया, यानी कि फेज सीक्वेंस जब मैच होगा तो तीनों लैम्प ब्राइट रहेंगे। एंड थर्ड मेथड इज सिंक्रोनोस्कोप मेथड। तो सिंक्रोनोस्कोप मेथड में ये ना एक सिंक्रोनोस्कोप करके डिवाइस होता है, उसके 2 वायर एक अल्टरनेटर में जाते हैं और 2 वायर दूसरे अल्टरनेटर में जाते हैं, ठीक है। तो वो देख लेता है फेज सीक्वेंस को, कौन सा मोटर स्लो है या फास्ट है, उस हिसाब से एक्शन देके वो चेंज कर लेता है। एंड ये सिंक्रोनोस्कोप मैं आपको दिखाऊंगा, एक मशीन होती है, ये जो इसका ये है, देखो दिस इज द पॉइंटर, दिस इज द पॉइंटर ऑफ सिंक्रोनोस्कोप। ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर आपको दिखा देता है कि मशीन स्लो चल रही है कि फास्ट चल रही है। फास्ट चल रही है तो आप स्पीड कम करोगे, स्लो चल रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाओगे, और ये जैसे बीच में न्यूट्रल है तो वो सेम फेस में जा रही है, आप इसको, ये जो आपका मेन स्विच है, स्विच को आप ऑन कर सकते हैं डायरेक्ट इन
इनकमिंग एंड आउटगोइंग अल्टरनेटर की स्विच को। So finally I can conclude the today's class. We have studied what do you mean by parallel operation of synchronous generator. Second, why parallel operation is important, because of load sharing and continuity of supply. Third, how to connect two generators in parallel, and that process is called as synchronization. And for synchronization, three conditions are important. Voltage of both the alternators should match. Second, frequency should be same. And third condition is phase sequence should be same. For third condition, there are different methods. Say dark lamp method, bright lamp method, and third one is synchronoscope method. लेकिन हम डार्क लैम्प एंड ब्राइट लैम्प तो यूज करते ही है, इसके अलावा जो जनरली जो लैब वगैरह में यूज होता है वो मेथड होता है आपका 2 ब्राइट एंड 1 डार्क। देखो L1 को आपने R एंड R' फेस पे किए हैं, तो ये जब मैच होगा तो डार्क होगा, और L2 को उल्टा कनेक्ट किए, Y को B' से एंड B को R', तो ये उल्टा कनेक्ट किए, तो देयरफॉर हमेशा ये वो मैच मिसमैच होगा। एंड मींस यू कैन से कि these two lamps are dark। नहीं समझ में। L1 should be dark and L2 and L3 should be bright, so therefore this method is called as 2 bright and 1 dark. Today's class is too much theoretical class. If anybody having any doubt, so they can ask. I can use some time for discussion. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। Anybody having any doubt, they can ask. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एंड सब लोग ना मोबाइल में अपना नाम लिखो, ठीक है? थोड़ा सा जूम में चेक कर लो। All should have their name. अदरवाइज थोड़ा सा आपकी अटेंडेंस मॉनिटरिंग भी हो रही है, उसके लिए आपको पार्टिसिपेंट्स को अपना नेम को बिल्कुल केयरफुली रखो। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट वो पूछ सकता है। और आई कैन स्टॉप हियर। इसका मैं एक्सपेरिमेंट आपको करवाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा इसका एक्सपेरिमेंट। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? राइट, से समथिंग। अगर किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन, तो पूछ सकता है। इट्स ओपन क्लास, ओपन फॉर ऑल। मेरी वॉइस ऑडिबल है ना? परवेश तुम हो ऑनलाइन? कोई कुछ नहीं पूछ, ठीक है? आई कैन स्टॉप हियर। रिकॉर्डिंग आई विल अपलोड because today's my internet connection is also weak. I don't know my voice is coming clear or not, but recordings I am uploading right now.